بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل وفاقی وزراء اور انتہائی لائق احترام بلوچستان ورکشاپ کے شرکاء، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں بلوچستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے انتہائی غیور محب وطن اور انتہائی قابل بہادر بیٹوں اور بیٹیوں کو اسلام آباد میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام آباد صحیح معنوں میں پاکستان کے چاروں صوبوں کا مسکن ہے، اور یہاں پر چاہے کوئی بلوچی ہے یا کوئی سندھی ہے یا کوئی پنجابی ہے یا پشتون ہے، وہ یہاں پر اجنبی نہیں، کیونکہ آپ سب پاکستان کی نمائندگی یہاں پر کر رہے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جغرافیائی لحاظ سے، اور وہاں پر بسنے والے ہمارے بہادر بلوچ اور پشتون بھائی اور بہن، انہوں نے پاکستان کی تخلیق میں بہت کلیدی کردار ادا کیا۔ 1947 میں بلوچستان کی کئی اسٹیٹس انہوں نے والنٹریلی پاکستان میں شمولیت اختیار کی، اور پھر 1948 میں دوسری اسٹیٹس، وہاں کے بلوچ پشتون لیڈرز، ٹرائبل لیڈرز، انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ کو تسلیم کیا اور پاکستان کا حصہ بنے، اور اس طرح بلوچستان پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی دوڑ میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ بلوچستان کی بڑی لائل لیڈرشپ نے ذاتی مفاد انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے اوور ویلمنگلی انہوں نے فیڈریشن کی سپورٹ کی، اور اس طرح یہ گاڑی آگے چلتی رہی۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گو کہ بلوچستان آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے، لیکن جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، لہٰذا جو وسائل دوسرے صوبوں میں، خاص طور پر گنجان آباد علاقوں میں جو وسائل تعلیم، علاج، معالجے اور خوشحالی کے لیے استعمال کر کے زیادہ آبادی کو اس کا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، بلوچستان کی صورتحال مختلف ہے، فاصلے بہت زیادہ ہیں شہروں کے درمیان، قصبوں کے درمیان، دیہاتوں کے درمیان، تو یقیناً وہاں پر ان دور دراز علاقوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وسائل نسبتاً زیادہ چاہیے، اور یہ بات اس کو ہم نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے 2010 میں پائے جانے والے NFC ایوارڈ میں اس کو تسلیم کیا، بلکہ والنٹریلی صوبوں نے اور خاص طور پر صوبہ پنجاب نے اس میں لیڈ لی، اور بلوچستان کے جو یہ مطالبہ تھا کہ ان کا فائنینشل ان کا جو حق ہے اس کو 100% اس میں اضافہ کیا جائے، باقی 3 صوبوں نے مل کر ان کا یہ مطالبہ اس وقت پورا کیا، اور اس میں پنجاب نے 11 ارب روپے سالانہ کنٹریبیوٹ کیا۔ اور میں یہاں پر بلا خوف تردید یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ کوئی احسان تھا، نہ کوئی فیور تھی، یہ ایک بھائی چارہ، جب ایک خاندان کے 4 افراد ہوتے ہیں تو وہ مل کر اپنے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے ہیں، اور اسی اسپرٹ سے یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا، اور آج تک پنجاب نے اکیلے 2010 سے لے کر آج تک تقریباً 150 ارب روپے اس میں کنٹریبیوٹ کیے ہیں، اور یہ ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی طریقے سے میاں محمد نواز شریف کے دور میں بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بے پناہ وہاں پر وسائل
वहाँ पर मुहैया किए गए और मंसूबे तामीर किए गए। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि बाद में आने वाली हुकूमतों ने और ख़ास तौर पर PDM की गवर्नमेंट में और अब हमने मिलकर जो बलूचिस्तान की जो डिमांड थी और बड़ी जायज़ डिमांड थी, उनको पूरा करने के लिए उनका जो बजट है उससे इजाफी वसाइल मुहैया किए गए। बलूचिस्तान के जो किसान हैं उनको जो बिजली उनको मिलती थी कई घंटे नहीं आती थी, फिर और भी उसमें वसाइल और मसाइल मौजूद थे, उसको हल करने के लिए तकरीबन 27,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पावर के ऊपर शिफ्ट किया गया और ये मंसूबा तकरीबन 75 अरब रुपए का था, जिसमें तकरीबन 50 अरब रुपए वफाक ने कंट्रीब्यूट किए बड़ी खुशदिली के साथ। इसी तरीके से जो M25 है, जिसको कराची से लेकर चमन तक जिसको खूनी सड़क कहा जाता है, खूनी सड़क, और वहाँ पर आए दिन वहाँ पर हादसात होते हैं और लोगों की जानें चली जाती हैं। इस दरीना मुतालबे को पूरा करने के लिए जब पिछले साल जब मुझे मौका मिला कि तेल की कीमत में कमी हुई, तो हमने उस रकम को इकट्ठा करके ये कराची से चमन तक 2 रोज़ा सड़क एक्सप्रेसवे बनाने का फ़ैसला किया और इस तरह ये मंसूबा तकरीबन 300 अरब रुपए का मंसूबा इंशाअल्लाह अगले 1.5-2 साल में जब मुकम्मल होगा तो मैं समझता हूँ कि इस खूनी सड़क को मैं समझता हूँ कि अमन की सड़क करार दिया जाएगा। ये वो मंसूबे हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि किसी भी हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मेरा ये मानना है और मैं ये बात आपको डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की वही है जहाँ पर चारों सूबे उस तरक्की की दौड़ में शामिल हैं, जहाँ पर चारों सूबों के अवाम उस तरक्की की दौड़ में वो खुशहाली से फैज़याब हो रहे हैं। और अगर एक सूबा मिसाल के तौर पर पंजाब तरक्की करता है तो वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। सिंध तरक्की करता है और बाकी सूबे पीछे रहते हैं तो वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। तरक्की की दौड़ में जब तक के चारों सूबे मुसावी तौर पर शरीक नहीं होंगे वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं होगी। और मैं इस बात को दिल की अथाह गहराइयों से इसको कबूल करता हूँ और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस हवाले से वफाकी हुकूमत कोई कसर नहीं छोड़ेगी। एक बहुत अंदरनाक वाक़या हुआ, सेशन जज मस्तूम के अब्दुल हकीम उन्होंने जामे शहादत नोश किया, उनके साथ एक उनके सरकारी एहलकार भी थे। अल्लाह ताला से हम सब 10 बदुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। पाकिस्तान के अजीम फर्जंदों, ये कुर्बानियाँ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खाली अवाम नहीं दे रहे, बल्कि इसमें हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी शामिल हैं, इसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान के कड़ियल जवान और अफसर शामिल हैं और इस वक्त 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं इस दहशतगर्दी का ख़ात्मा करने के लिए, जिसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, वसाइल भी मुहैया कर रहा है उनको और दूसरे और भी इसमें फैक्टर्स हैं। 2016-17 में दहशतगर्दी का मुकम्मल इस मुल्क में ख़ात्मा हो चुका था और उस वक़्त अफवाज पाकिस्तान आम शहरी ने, चाहे वो KP के हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के हैं, पंजाब के हैं, सिंध के हैं, माओं बहनों बेटों जवानों इंजीनियर्स डॉक्टर्स बच्चों ने सब ने जामे शहादत नोश किया। हज़ारों लोग शहीद हुए और बिलाखिर 2017-18 में ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। उसके बाद दोबारा किस तरह आई, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक इंतहाई मुनज़्ज़म साजिश की गई और दहशतगर्दी पाकिस्तान में दोबारा ऊद के सामने आई है। लेकिन आज ये एक लाइव चैलेंज है, इसका हमने
سب نے مل کر مقابلہ کرنا ہے افغانستان کی، جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، جس کے ساتھ پاکستان تقریباً 2000 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتا ہے۔ ان کو ہم نے دن رات ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ابھی بھی ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمسائے ہیں، ہم نے مل کر رہنا ہے، اس خطے میں امن چاہتے ہیں تو وہاں پر جو یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو لگام دیں، اور افغانستان کی جو زمین ہے ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ لیکن ہنوز ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے، نہ جانے کیا وجوہات ہیں کہ افغان انٹرم گورنمنٹ ان کو رین ان کرنے میں ناکام رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ مبارکہ حق ہو جس میں ہندوستان کو 4 دن کے اندر شکست فاش دی گئی اور اس کو چھٹی کا دودھ ان کو یاد آ گیا، اور اسی طریقے سے یہ جو ڈپلومیسی ہوئی ہے، اور اس ڈپلومیسی میں پاکستان نے جو امن بحال کرنے کا خطے میں ایک کلیدی ایک رول ادا کیا ہے، اس سے دنیا میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت عطا فرمائی۔ یہ عزت، یہ وقار ان دشمنوں کو نہیں، ان کو ٹالریٹ وہ نہیں کر پا رہے، ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو معاشی ترقی کی دوڑ میں آگے لے کے جانا ہے، ان اپرچونٹیز کو کنورٹ کرنا ہے۔ پاکستان میں خوشحالی اور ترقی کا دور دارہ جو ہے وہ ہر طرف چاروں صوبوں میں پھیلے۔ یہ تبھی ہوگا کہ ہم سب مل کر دن رات محنت کریں گے، انتھک محنت کریں گے، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے چاروں صوبے اور 24 کروڑ عوام مل کر جب اس سفر میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ پاکستان دنیا میں اپنا مقام حاصل کرے گا، اور اس طریقے سے ہماری جو عسکری اور سفارتی جو کامیابیاں ہیں وہ دوبالا ہو جائیں گی۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی کمر کسنی ہوگی اور دن رات محنت کے لیے ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اقبال نے یہ کہا تھا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں آئیے مل کر ہم اسی شعر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور پاکستان کو عظیم بنائیں۔ السلام علیکم سر، سلیم ہے، میں کوئٹہ بلوچستان سے ہوں۔ سر فرسٹ آف آل اٹس این آنر کہ آپ نے ہمیں یہاں آنے کا موقع دیا، ٹائم دیا، تو وی آل آر ویری گریٹفل ٹو یو۔ سر ہم نے دیکھا ہے آپ کی لیڈرشپ میں پاکستان اسپیشلی فیڈرل سیکٹر کے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں میں ایک میسو امپرومنٹ آئی ہے ٹرانسپیرنسی میں گورنمنٹ سیکٹر کے اس میں۔ تو کویشچن اور جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سیم اسٹریٹجی صوبائی سطح پہ بھی لائی جا رہی ہے، اس میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے، یا وہاں پہ کیا اسٹریٹجیز اپلائی کی جا رہی ہیں صوبائی سطح پہ؟ جی شکریہ۔ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ گورننس کو یقیناً الحمدللہ ہم سب مل کر ہم اس کو یہاں پر پروموٹ کر رہے ہیں، اس کے جو فوائد سامنے بھی آ رہے ہیں۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو ہمارا ریونیو کلیکٹنگ ہماری جو ایجنسی ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، ہم سب جانتے ہیں کہ ملی بھگت سے، کلوژن سے میسو کرپشن ہے وہاں پہ۔ وسائل جو خزانے میں آنے چاہیے وہ نہیں آتے، اور تھرو کلوژن وہ اربوں نہیں کھربوں کے وسائل جو ہیں سالانہ وہ جیبوں میں جاتے ہیں، اور پاکستان میں غربت جو ہے بڑھتی ہے، مسائل بڑھتے ہیں، مشکلات بڑھتی ہیں، اور اسی لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، قرضے ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں۔ تو یہ جو ایک ویشیس سرکل ہے، اس کے خاتمے کے لیے صرف اور صرف ایک ٹرانسپیرنٹ گورننس کا ماڈل جو ہے وہی ماڈل جو ہے اس کا حل ہے۔ تو ہم نے یہاں پر مل کر ایز اے ٹیم ورک ہم نے اس کی ابتدا کی ہے، اور پچھلے سال جو بھی سال فائنینشیل ایئر گزرا ہے، ایف بی آر کے جو ڈیوز، جو ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، نئے ٹیکسز کی بات نہیں کر رہا، جو ٹیکسز لگے ہوئے ہیں اسپیشلی جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں لائک سیلز ٹیکس اور اس طرح کے، ان میں جو میسو جو ایویژن تھی، صرف ایک سال میں 800 ارب روپے وصول کیے گئے ہیں، اور یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی، بٹ
It is just a drop in the ocean. It's a long way to go. A very thorny journey, जिसमें बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे, बड़े वहाँ पर दरिया पहाड़ नुमा मुश्किलात आएंगी, लेकिन वही कौमें तरक्की करती हैं और अपनी मंजिल को पहुँचती हैं जो कि फ़ैसला कर लें कि हम हर मुश्किल का, हर चैलेंज का मुकाबला करेंगे और अपनी मंजिल को हासिल करेंगी। इसकी मिसालें तारीख़ के औराक में भरी पड़ी हैं। आप देखिए जापान जंगे दोइम में वो बिल्कुल नेस्त नाबूद हो गया, जर्मनी नेस्त नाबूद हो गया। 50 साल के अरसे में उन्होंने शबाना रोज़ मेहनत करके दोबारा वो दुनिया के नक्शे पे ऊत के आए। कोई जादू मंत्र के ज़रिए नहीं, सिर्फ मेहनत अमानत और दयानत के ज़रिए। तो यही वो वाहिद तरीका है कौमों की तरक्की और कौमों की इज़्ज़त और वक़ार का। तो मैं समझता हूँ कि ये मॉडल जो है, जिसकी मैं अभी आपको एक मिसाल दी है, यकीनन सूबों में भी ये मॉडल जो है राइज हो रहा है। सूबे अपनी जगह वो कोशिशें कर रहे हैं और ये मिलकर इंशाअल्लाह हम इसमें बेहतरी लेके आएंगे। वी मस्ट मेक श्योर एंड इट्स हाई टाइम that in all the provinces, services to the common man should be made available at the doorstep, and the only way is to have very effective devolution. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मसूद है और मैं बलूचिस्तान से हूँ। सर आपसे एक गुजारिश थी, जो कच्ची कैनाल पे जो आपका प्रोजेक्ट है, काम हो रहा है, अगर आप उसे थोड़ा सा तेज़ कर दे तो आपकी मेहरबानी होगी सर। जी बिल्कुल, बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। इस साल हमने जो हमारे जो वाटर स्टोरेज के जो मंसूबे हैं उनके लिए इस साल बजट में 368 अरब रुपए रखे गए हैं और इसमें कच्ची कनाल का मंसूबा भी शामिल है। इंशाअल्लाह इस मंसूबे को तेज़ी से मुकम्मल करेंगे और कच्ची जो है या कच्ची, मेरा ख्याल है बेहतर होगा कि इसका नाम हम पाकिस्तान कनाल बना दें तो बहुत अच्छा नाम होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम खालिदा यूसुफ है, मैं बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट चागी से बिलोंग करती हूँ। और सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे ये डिस्ट्रिक्ट चागी से हैं? जी सर, बड़ा फख्र है हमें आप पे। थैंक यू सर। सर ये मेरे लिए ये भी बड़ी खुशी और एजाज़ की बात है, आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। और सर हमेशा आपके यूथ जो स्कीम है वहाँ से स्टूडेंट्स को मैंने फैसिलिटेट और बेनिफिट्स लेते हुए देखा है। और अगर यहाँ देखा जाए, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे बिलोंग टू बलूचिस्तान विद मिनिमम फाइनेंशियल रिसोर्स। लैपटॉप बहुत बड़ी नीड है स्टूडेंट्स के लिए, तो हमारा ये हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली आप हमें प्रोवाइड की जाए। बहुत शुक्रिया बेटी आपका। जहाँ तक लैपटॉप की बात है तो मुझे इंतहाई आजिज़ी के साथ इस बात का फ़ख्रिया ऐलान करना चाहता हूँ कि मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे लीडर जो हैं, हमने जब मैं पंजाब में था खादिम, वो यहाँ पर वज़ीर आज़म थे, तो हमने पाकिस्तान भर के बच्चों और बच्चियों को जो इंतहाई लायक और हाई अचीवर्स, हाई परफॉर्मेंस, मेरिट पर उनके हाथों में लैपटॉप दिए, क्लाशनकोफ नहीं दी। और मैं समझता हूँ कि उससे आप देखें कि आज हमारा जो ज़माना आ गया है डिजिटल इनोवेशन का, एआई का, आईटी का, उसमें जो लाखों लैपटॉप्स तकसीम किए गए, उसने न सिर्फ उन बच्चों की, उन बच्चियों की, उनके घरानों की तकदीर बदल दी, बल्कि उन सब ने, आप सब ने जिनको ये लैपटॉप मिले, पाकिस्तान की तरक्की और तालीम के लिए आपने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। और अभी भी एज ए स्पीक, ये पिछला साल जो गुजरा है, हमने पूरे पाकिस्तान में 1 लाख लैपटॉप तकसीम किया मेरिट के ऊपर। जो भी हम इनिशिएटिव लेते हैं, चाहे वो लैपटॉप्स हैं, चाहे वो वज़ाइफ हैं, वो कोटा 10% बाकी सूबों के मुकाबले में बलूचिस्तान का कोटा 10% ज़्यादा है बिल्कुल। और इससे आप अंदाज़ा करें कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम कितने कोशां हैं। एक तो ये बात है, और लैपटॉप इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल मिलेंगे।
इसके अलावा बलूचिस्तान में इस वक्त 9 दानिश स्कूल बनाए जा रहे हैं, 9, और उसका मॉडल वही है जो पंजाब में था। बच्चियों के लिए अलहदा उनकी तालीम की दरसगाह, बच्चों के लिए अलहदा डॉमेट्रीज, खेल कूद के मैदान, हर चीज़, क्लासरूम बिल्कुल सेपरेट हैं। ये एचएन कॉलेज की हम पल्ला, मगर एक फ़र्क है, एचएन कॉलेज लाहौर में जो अशराफिया हैं उनके बच्चे जाते हैं। दानिश स्कूल इसलिए बनाए गए कि अगर एचएन कॉलेज में तुमनदारों के बच्चे जा सकते हैं तो दानिश स्कूल में गरीब, यतीम, काबिल बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको उन दानिश स्कूलों में दाखिला मिलकर आज ये हज़ारों दानिश स्कूल जो हैं, हज़ारों बच्चे और बच्चियां वो आज स्कॉलर्स बन गए हैं, वो आज बड़े आला ऑडिटर्स बन गए हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और इस कौम की भरपूर खिदमत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तालीम का जो मैदान है दानिश स्कूलों के हवाले से, इसमें इंशाअल्लाह मज़ीद बढ़ोतरी होगी, और अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बलूचिस्तान की दरसगाहों के लिए और उनकी तालीमी इदारों के लिए वहाँ की हुकूमत के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हमारा उनके साथ बहुत अच्छा इश्तराक है। इंशाअल्लाह हम वहाँ पर आपके लिए मज़ीद मौक़े पैदा करेंगे तालीम के लिए, ताकि आप तालीम हासिल करके कौम के अजीम मेमार बने। और मुझे यकीन है कि आप बड़े बड़े दलेर माँ बाप के आप बेटे बेटियां हैं। इंशाअल्लाह यकीनन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में आप अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, और जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं हम सब मिलकर उनकी बेख करने के लिए आप सबसे आगे आप हरावल दस्ता होंगे, और इस तरह पाकिस्तान बहुत जल्द दहशत गर्दी से इंशाअल्लाह निजात हासिल करेगा। आज जब यहाँ पर हम बैठे हैं तो हमें बलूचिस्तान के अंदर मज़ीद वसाइल मुहैया करने हैं, क्योंकि मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि जब तक के बलूचिस्तान का आम आदमी, चाहे वो कोटा में है, चाहे वो करलात में है, चाहे वो चमन में है, या किसी भी जगह है, देहात में है, जब तक उसको ये एहसास नहीं होगा कि मेरी तरक्की और खुशहाली के लिए बलूचिस्तान की हुकूमत और वफाक मिलकर सूबा पंजाब, सिंध और केपी की तरक्की और खुशहाली की तरह वो कंसर्न नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि आप उस वक्त तक आप सेटिस्फाइड, आप मुतमईन नहीं होंगे। मैं आज आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आपकी तरक्की, खुशहाली, तालीम, इलाज के लिए हत्तुल मक़दूर हम कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, हम सबको कायम दायम रखे, आबाद रखे, और पाकिस्तान को दुनिया का एक ताकतवर तरीन मुल्क इंशाअल्लाह हम बनाकर दम लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से गुफ्तगू जारी थी। उनकी जानिब से खिताब भी किया गया इससे कबल, और जो तलबात वहाँ पर मौजूद थे, जो शुरा वहाँ पर मौजूद थे, उनके सवालों के जवाब भी दिए गए हैं। कहा गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तलबा के लिए अच्छी स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। लैपटॉप की तकसीम भी जल्द यहाँ पर होगी। इसके अलावा 9 दानिश स्कूल बलूचिस्तान में बनाए जा रहे हैं। इसका ऐलान भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया। ये भी वाज़ेह किया कि उसी तरह से बनाए जा रहे हैं जिस तरह पर, जिस लेवल पर पंजाब में मौजूद हैं, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं रखा जाएगा। दहशतगर्दी खिलाफ जंग जारी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत ज़्यादा क्लियर है। हमसाया मुल्क को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और ख़ित्ते में इस वक्त जो सूरत हाल है, बदलती सूरत हाल, उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। मार्का हक़ के हवाले से भी एक बार फिर से वाज़ेह किया गया कि जिस तरह से शिकस्त फाश किया गया है दुश्मन को, मार्का हक़ के अंदर वो पूरी दुनिया ने देखा।